کہاں جا رہے یار؟ ہمارے سینئر کو نکلنا نہیں اور اس منصوبے پر کسی قسم کی کارروائی نہیں دکھائی گئی، چونکہ اس حکومت کو یہ گمان تھا کہ یہ منصوبہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا منصوبہ ہے، اس لیے اس کے ساتھ سیاسی انتقامی کارروائی کی گئی۔ یہ ظلم مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں تھا، یہ کراچی کے عوام کے ساتھ تھا کہ جن کو جدید سہولت جدید رینجر سے بھی اپنا سیاسی ایجنڈا پورا کرنے کے لیے رینجر سے بھی پولیس والا کام لے رہی ہے۔ ہماری حکومت میں ہم نے کبھی رینجرز کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا تھا، رینجرز کو سیاسی پروگراموں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ فوج کی قیادت اس بات کا نوٹس لے گی کہ اگر فوج کے ادارے جو فوج کی کمانڈ میں ہیں وہ سیاسی اجتماعات اور سیاسی سرگرمیوں میں ملوث کیے جائیں گے تو پھر خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ پاکستان کے عوام براہ راست ان اداروں کے سامنے آ کھڑے ہوں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایسی صورتحال ہو، لیکن آج وہ رینجرز کہ جس نے پاکستان میں اور کراچی شہر میں دہشت گردوں کا کلا کما کرنا ہے، آج اس رینجر کے ہاتھوں ایک سابق وزیر داخلہ کا اگر خون بہا ہے تو یہ شرم کی بات ہے اس رینجر کے لیے، یہ شرم کی بات ہے اس حکومت کے لیے کہ یہ نہتے سیاسی کارکنوں پہ تو ظلم کرتی ہے، لیکن وہ لوگ جو ریاست پہ حملہ آور ہوتے ہیں، وہ لوگ جو پولیس کے اہلکاروں کو مارتے ہیں، وہاں پر ریاست جو ہے وہ بے بس نظر آتی ہے۔ سیالکوٹ جیسے واقعے آتے ہیں اور یہ ریاست بے بس آتی ہے نظر، لیکن اس ریاست کا سارن اگر یہ 4 چیزیں کراچی کو دے دی جائیں تو کراچی والوں کے اندر اتنا انٹرپرائز ہے کہ وہ کراچی کو شنگھائی کے مقابلے کا شہر بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو بھی حکومتیں آئیں، جن کو کراچی سے ووٹ ملا، انہوں نے کراچی سے ووٹ تو لیا لیکن بجلی، پانی، صفائی اور امن کے لیے کچھ نہیں کیا۔ مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں ملا، لیکن 2013 میں ہم نے سب سے پہلے آ کے کراچی کے امن کو ترجیح دی۔ وہ کراچی شہر جہاں پہ کوئی مرد گھر سے نکلتا تھا تو اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی مصلے پر بیٹھ جاتی تھی کہ یا اللہ خیر میرا شوہر، میرا بیٹا، میرا بھائی شام کو خیریت سے واپس آ جائے۔ اس کراچی میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے امن قائم کر کے دکھایا۔ 200 سے زیادہ بڑے کارخانے جو بند ہو گئے تھے وہ دوبارہ چالو ہوئے، کراچی کی معیشت کا پہیہ دوبارہ
चालू हुआ और इंशाल्लाह अल्लाह ने दोबारा मौका दिया तो हम फिर कराची को, जैसे मैंने कहा कि शंघाई के हम पल्ला बनाने के अपने मिशन पर काम करेंगे और कराची के लिए बिजली, पानी, सफाई और अमन के कायम करके और फराहम करके कराची को दुनिया के सामने बेहतरीन शहर बनाएंगे ताकि कराची और सिंध भी खुशहाल हो और कराची और सिंध की खुशहाली से पाकिस्तान भी खुशहाल हो। अब मैं ज़ुबैर साहब, गवर्नर ज़ुबैर साहब जो इस मंसूबे की वफाकी हुकूमत की तरफ से निगरानी करते रहे, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो चंद अल्फाज इस मौके पर ज़रूर आपसे बोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है हम सबको सबसे पहले तो आज का दिन जो है वो खुशी का दिन है हमारे लिए, और हम इस वजह से एहसन इकबाल साहब यहाँ मौजूद हैं और सब कारकुन यहाँ मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज जिस चीज़ का इफ्तिताह कल इमरान खान करने आ रहे हैं वो तोहफा है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, और आज उसका हमने इफ्तिताह कर दिया है। तो इमरान खान साहब, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, इफ्तिताह हो चुका है। जिन्होंने इफ्तिताह करना था उनकी आप तख्ती ना हटाएं आके। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो एक मंसूबा था जो कि मियाँ नवाज शरीफ ने कराची के लिए दिया, और इसकी तकमील होनी थी दिसंबर 2018 में। अब इतनी नकम्मी हुकूमत आई है जिसको बिठा दिया गया है कि इनको 3 साल, 3.25 साल लगे उसको 10% को मुकम्मल करने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें फ़ख्र है, ग्रीन लाइन मंसूबा कराची के अवाम को PMLN ने दिया है। 2 मंसूबों, एक मंसूबे का K4 का जिक्र किया था, पानी का मंसूबा जो हमने शुरू किया था, और लियारी एक्सप्रेस वे, उसमें भी हमारा 50% कंट्रीब्यूशन है कराची के लिए। यहाँ के जो पावर प्लांट्स लगे, LNG टर्मिनल्स लगे, मिफ्ता इस्माइल साहब बैठे हुए हैं, वो शायद और वजाहत कर देंगे। ये कराची के लिए हमारे बहुत मंसूबे थे, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज था जिस पर हमें फ़ख्र है, 2013 सितंबर में जिसका इब्तिदा किया गया था ऑपरेशन कराची का, अमन लाने के लिए। एक दफ़ा अमन आ गया था तो आपने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटी भी शुरू हो गई थी, सोशल एक्टिविटी भी शुरू हो गई थी, कल्चरल एक्टिविटी भी शुरू हो गई थी, और हमारी मौजूदगी में PSL का फाइनल कराची में हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा एक कराची में जो 2013 में कुछ सोच भी नहीं सकता था, तो हमने इफ्तिताह कर दिए एक बार फिर इमरान खान साहब के लिए। आज सुने वो टेस्ट रन के लिए भी काफ़ी लोग आए थे, वज़ीर और गवर्नर साहब। तो मेरा ख्याल है कि ये हम कर चुके हैं इफ्तिताह, उसका फॉर्मल इफ्तिताह। ये जो मार खा के, और ये हमारी कारकुन है औरत हमारी, इनको मार पड़ी है, इनको डंडे मारे गए। तो जो हमारे साथ हुआ है, एहसन इकबाल साहब तो आगे थे, जो पीछे हमारे साथ हुआ है कि इतने धक्के और इतने डंडे, मेरा ख्याल है थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था। और हम कहीं ऊपर भी नहीं जा रहे थे, हम इसी फुटपाथ पर आगे जाके इफ्तिताह कर रहे थे। एक पट्टी थी जिसको हमने काटना था और वो हमने कर दिया, अल्लाह का शुक्र है, हम मुतमईन हैं। ग्रीन लाइन के जो हकदारान थे उन्होंने आज इसका इफ्तिताह कर दिया। एक दो बातें मैं करूंगा, एक दो बातें मैं करूंगा। एक तो ये आप जानते हैं कि जितनी भी पाकिस्तान में BRT लाइनें लगी हैं वो सूबे की हुकूमत में बनी है। जो लाहौर में BRT लगी है वो पंजाब हुकूमत ने बनाई थी। जो पेशावर में पाकिस्तान की महंगी तरीन BRT बनी है वो KB हुकूमत ने बनाई थी। लेकिन सिंध हुकूमत ने हस्ब तवक्को और हस्ब तारीख कराची के ऊपर एक पैसा खर्च करने की तौफीक नहीं करी, और ये लाइन भी वफाक के पैसों से बनी थी। सिंध हुकूमत ने इसने अपना हिस्सा नहीं डाला। तो एक तो ये पहले बात हो जाए कि ये वफाक के पैसे से बनी है। दूसरी बात जो मैं आपको बता दूं कि ये 18 अरब रुपए की या 20 अरब रुपए की लाइन थी। जो लाहौर में BRT बनी है वो 27 अरब की बनी है, जो इस्लामाबाद में बनी है वो 35 अरब की बनी है, लेकिन जो पेशावर में बनी है, जो सिर्फ जितनी लाहौर जितनी लंबी है, वो 125 अरब रुपए की बनी है। जितनी BRT नवाज शरीफ ने बना के दी है आपको,
वो तमाम पांचों की कॉस्ट अकेले इमरान खान की एक पेशावर की बीआरटी की कॉस्ट है। तो ये याद रखिएगा। तो ये आपको बता देगा कि नाअहल भी कौन है और जो नाअहल है वही चोर है। अब दूसरी बात सुन लें कि कराची वालों को एहसन भाई ने बात करी कि अमन नवाज शरीफ ने दिया, कोई एहसान नहीं दिया, ये हुकूमत का फर्ज था। लेकिन दूसरी हुकूमतें अपना फर्ज पूरा नहीं करती। इमरान खान ने कराची के अंदर जो 55 रुपए की चीनी मिलती थी आपको, आज 100 रुपए के ऊपर दे रहा है। जो 30 रुपए का आटा मिलता था, आज 70 रुपए का दे रहा है। पूरे कराची को, पूरे पाकिस्तान को इसने गरीब कर दिया है और पूरे पाकिस्तान को मकरूज कर दिया है। तो ये बात भी मुझे करनी थी। बहुत शुक्रिया। देखिए नहीं, ये देखिए आप मैं आप सवाल मेरा सुनिए। तो इस बात में या इस दावे में कितनी जी मैं ठीक है। देखिए मैं ये बात कराची के अवाम पर छोड़ता हूँ। कराची के अवाम इस बात के गवाह हैं कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई है तो ग्रीन लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पे ले किया जा चुका था। सिर्फ बसों की प्रोक्योरमेंट और स्टेशंस का कुछ सामान जो है इंस्टॉल होना बाकी था, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में और 6 नहीं तो 8 महीने में मुकम्मल हो जाना था। इन्होंने 3.25 साल उस पर लगाए। और फिर देखिए शर्म तुमको मगर फिर भी नहीं आती। कल तक तो तुम मेट्रो बस को जंगला बस कहते थे, आज उस मेट्रो बस के शान में कसीदे के फ्लैक्स लगाए हुए हैं। आज उसी मेट्रो बस का क्रेडिट लेने इमरान न्याजी कराची आ रहा है। आज अब आपको समझ आई है इमरान साहब, आपको पता लग गया है ना कि मेट्रो बस से अवाम का फ़ायदा होता है। इमरान साहब अब आपको समझ लग गई ना कि शाहराहें बनाने से मुल्क तरक्की करते हैं। अब तो इमरान खान सड़कों के भी कसीदे पढ़ते हैं, मोटरवेज के भी कसीदे पढ़ते हैं। इमरान साहब अब तो आपको समझ लग गई ना, सी पैक पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाला मंसूबा था। आप तो सी पैक को भी चीन के महंगे कर्जे करार दिया करते थे। आपको समझ लग रही है और इंशाल्लाह समझ लग जाएगी कि मुस्लिम लीग नून जो कुछ भी करके गई है पाकिस्तान की तरक्की के लिए करके गई है और अवाम की खुशहाली के लिए करके गई है। और आज हम फिर कराची के अवाम की तरफ से इस मंसूबे की तकमील पे कहते हैं शुक्रिया नवाज शरीफ, शुक्रिया मुस्लिम लीग नून। कराची के लोग जिंदाबाद, कराची के अवाम जिंदाबाद। इस तरह लगे कि जैसे ये जो मंसूबा है ये इमरान खान का है, वो मुबारक। ये बताइएगा कि वो इसका कल इफ्तिताह करेंगे, उनको क्या फ़ायदा होगा और आपको अलामती इफ्तिताह करके इसका क्या फ़ायदा होगा? देखिए हमने आज अलामती इफ्तिताह इसलिए किया है कि जो इसके जायज़ हकदारान हैं वो इसका इफ्तिताह करें और जो इस मंसूबे के नाजायज़ हकदारान हैं वो कल आके इस पे झूठे फीते काटेंगे और झूठा क्रेडिट लेंगे। मैंने तो आपसे कहा है कि ये इमरान न्याजी से कोई पूछे कि किस मुंह के साथ इसका इफ्तिताह करने आ रहे हो। तुम तो मेट्रो बस को जंगला बस कहते थे, तुम तो कहते थे मैं मरता मर जाऊं, मैं कभी मेट्रो बस नहीं बनाऊंगा। अब समझ आई कि अब तुम्हारे वजीर और तुम्हारी हुकूमत इस मेट्रो बस के कसीदे पढ़ रही है। तो मुस्लिम लीग नून ने तरक्की के फलसफे को समझ के ये काम किए हैं। तुम्हें देर से समझ आ रही है, तुम हर काम देर से करते हो। पहले से बैठे नहीं आप नहीं ऐसी मैं जब शर्मा जवाब मैं मेरी बात सुनो। अच्छा बस सवाल
ہمارے وطن سوال اچھا تھا. میری بات سنیں, میں اب 2-3 چیزیں گنا دوں آپ کو کہ مشرف صاحب نے لیاری ایکسپریس وے کا ایک سائٹ بنایا, اس کے بعد کوئی نہیں بنا سکا. یہ نواز شریف کی حکومت میں کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد K4 کے ہم نے آدھے پیسے دیے, 2 LNG ٹرمینل لگائے پورٹ قاسم میں کول کا ٹرمینل لگایا, کنب کے اندر 2200 میگا واٹ نیوکلیر پاور لگایا, اور ہب کے اندر جو کہ کراچی کے سن لو. دیکھیے جو لاہور کی میٹرو بنی, وہاں مسلم لیگ نون کی اپنی حکومت تھی اور انتظامی معاملات میں ہمیں کسی کی محتاجی نہیں تھی. یہاں پر سندھ کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں تھی, اور اس کے باوجود ہم نے اس کا تقریباً 90% تک انفراسٹرکچر, اس کے باوجود کہ سندھ میں ہماری حکومت نہیں تھی, ہم نے صوبائی حکومت کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے مکمل کیا. اگر سندھ میں ہماری اپنی حکومت ہوتی تو ہم لاہور سے بھی کم عرصے میں اس کو آپ کو مکمل کر کے دکھا دیتے ہیں.